This video we are going to learn about the MOSFET, which is metal oxide semiconductor field effect transistor. Since FET have few disadvantages like high drain resistance and moderate input impedance. MOSFET is advanced form of FET. So it is also called IGFET, which is insulated gate field effect transistor, and it is an active device that control flow of electrons and the flow of current and the flow of current. So MOSFET is active device. MOSFET is used for switching purposes and also amplification of electronic signals. It is in the form of integrated circuit or fabricated in single chip. MOSFET is four terminal device, consists of drain, source, gate and substrate or body. But source and substrate are internally connected, thus forming three terminal device. Now coming to the construction of MOSFET. Construction is similar to FET. इसमें बॉडी पी टाइप मटेरियल की होती है, पी टाइप मटेरियल से बनी होती है, एंड which is called substrate or body, and there are two N wells and depletion region is formed. Since there are two N wells and the depletion region is formed, metal contact होता है source and drain पे. Similarly in below there is also metal contact and बहुत thin SiO2 layer होती है, उस पे metal contact होता है और gate is placed above the metal contact, and gate control the operation of MOSFET. Now the classification of MOSFET. MOSFET is classified into two types, which is depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET. Depletion type is further classified into N type and P type, where enhancement type MOSFET is again classified into N type and P type. Here you can see the symbol of N channel MOSFET and the symbol of P channel MOSFET, which is N channel enhancement MOSFET and N channel depletion MOSFET, whereas P channel enhancement MOSFET and depletion P channel depletion MOSFET. Now coming to the next topic, which is enhancement type N channel MOSFET. So the main purpose is to make current to flow. हमारा मेन पर्पस है कि हमको मॉसफेट से करंट फ्लो कराना है. सो देर आर सर्टन स्टेप्स, वी डिवाइडेड इनटू सर्टन स्टेप्स. सो स्टेप वन इज, इन स्टेप वन दो मेटल कॉन्टैक्ट पे सोर्स एंड ड्रेन प्लेस होता है और सोर्स और सबस्ट्रेट इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, एंड देयर्स very thin SiO2 layer to which gate terminal is placed. You can see in the diagram of MOSFET. Here is SiO2 layer and there are two metal contact and to which source and drain are placed, and one metal contact is in below where the substrate is placed. So their source and the substrate are internally connected. So now coming to the step 2, हमें MOSFET में करंट फ्लो करना है. अगर हम ड्रेन को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं और सोर्स को लोअर पोटेंशियल में, तो करंट फ्लो होगा, बट इट विल बी इन रिवर्स बायस, क्योंकि एन टाइप मटेरियल हायर पोटेंशियल पे है और पी टाइप मटेरियल लोअर पोटेंशियल पे है. इसकी वजह से एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी इसकी वजह से, और हमें मॉसफेट में करंट फ्लो करवाना है, तो इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अ चैनल. हमें क्रिएट करना पड़ेगा दो एनवल्स के बीच में, एक चैनल को हमें क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल. तो हमें गेट और सोर्स को बैटरी से कनेक्ट करेंगे हम, which is VGS. You can see in the diagram gate and source are connected to battery which is VGS, और गेट को हायर पोटेंशियल पे रखेंगे और सोर्स को हम लोअर पोटेंशियल पे रखेंगे.
जो सोर्स है वो ग्राउंडेड होता है, इट इज़ केप्ट एट 0 वोल्ट. सो नाउ कमिंग टू द स्टेप 3. नाउ कमिंग टू द स्टेप 3, हमें अब हम स्टेप 3 में कंपेयर करेंगे SiO2 लेयर को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, बिकॉज SiO2 एक डाइलेक्ट्रिक की तरह भी बिहेव करती है और विच इज़ इंसुलेटर एज वेल. तो SiO2 लेयर इज इंसुलेटेड लेयर एंड वी वांट टू नो द बिहेवियर ऑफ चार्जेस. हमें चार्जेस का बिहेवियर भी पता करना है. अगर हम दो पैरेलल प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज एक्यूमुलेट होंगे. यू कैन सी इन द डायग्राम, अगर हम बैटरी से दो प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज एक्यूमुलेट होंगे. और अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं इन बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा और ज़्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे. और SiO2 लेयर भी सिमिलरली बिहेव करता है और ज़्यादा चार्जेस को एक्यूमुलेट करती है. इसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे SiO2 लेयर पे. ड्यू टू दिस इट बिकम लेस पी टाइप, वो लेस पी टाइप होगी. इन द सर्किट डायग्राम द इलेक्ट्रॉन मूव आउट एंड वो होल्स क्रिएट करते हैं. इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव करते हैं और होल्स डाउनवर्ड पुश्ड होते हैं. जब VGS की स्ट्रेंथ हम इंक्रीज करते हैं तो वो एक चैनल क्रिएट करता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम VGS की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं तो एक सर्टेन वोल्टेज विच इज़ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं. तो चैनल क्रिएट होगा और VGS को इंक्रीज करते हैं तो चैनल की थिकनेस और इंक्रीज होती है और करंट भी उसी के साथ इंक्रीज होता है. as you can see in the circuit diagram of MOSFET. In this step 4, for making current to flow, हमें करंट को फ्लो कराना है. सोर्स एंड ड्रेन आर कनेक्टेड विथ वोल्टेज सोर्स विच इज़ VDS. हम एक सोर्स और ड्रेन को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, वो है VGS. और अगर हम VGS को हम सोर्स एंड ड्रेन को कनेक्ट कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स से विच इज़ VDS. अगर हम VDS को इंक्रीज़ करते हैं तो ड्रेन करंट भी इंक्रीज़ होता है और वो और ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करता है. अगर हम और इंक्रीज़ करते हैं VDS को so it will increase more current. Now you can see in the diagram of MOSFET. तो वो VDS को अगर हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो वो करंट को और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. और अगर हम और इंक्रीज़ करते हैं VDS को तो सो इट विल इंक्रीज मोर करंट. सोर्स एंड सबस्ट्रेट 0 वोल्ट पे होते हैं. Thus there's negligible effect on VDS due to them. N साइड हायर पोटेंशियल पे है तो रिवर्स बायसिंग इंक्रीज होती है तो डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज होता है और चैनल बहुत नैरो हो जाता है और वो करंट को रजिस्ट करता है. अगर चैनल नैरो होगा तो फिर करंट भी मतलब उसमें उतनी आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा, वो करंट को रजिस्ट करता है. और अगर हम और इंक्रीज़ करते हैं VDS को तो चैनल और ज़्यादा नैरो होता है और एट अ पॉइंट VDS करंट बिकम सैचुरेटेड. एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे VDS करंट सैचुरेटेड हो जाता है. उस टाइम पे हम ड्रेन करंट को सैचुरेटेड करंट कहते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड पिंच ऑफ सैचुरेशन. वो पॉइंट को हम पिंच ऑफ सैचुरेशन कहते हैं एंड वोल्टेज कॉल्ड सैचुरेटेड वोल्टेज. एट दिस पॉइंट इफ़ वी फर्दर इंक्रीज VDS सो करंट विल नो लॉन्गर इंक्रीज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर हम करंट को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें VGS की वैल्यू को इंक्रीज़ करना होगा. फिर क्या होगा कि चैनल की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी. अगर हम VDS को इंक्रीज़ करेंगे तो चैनल की विड्थ कम होगी, इट विल बिकम नैरोअर
एंड अगर हम VGS को इंक्रीज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, अगर हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो चैनल की विड्थ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इट बिकम वाइडर. सो I hope you understand the concept of enhancement type N channel MOSFET. Now coming to the depletion type MOSFET. डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, यहाँ पर चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है. बैटरी लगाने और हमें कोई चैनल क्रिएट करने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है, बैटरी लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है. बट सोर्स और गेट अगर हम बैटरी प्लेस करते हैं तो एंड रीजन हायर पोटेंशियल पे होता है और जो सबस्ट्रेट रीजन है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, तो चैनल की थिकनेस इंक्रीज होती है. नाउ कमिंग टू द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट. So region of operation, first is cutoff region. In this region device is completely off. Zero amount of current flow to the device. स्विच इसमें डिवाइस स्विच की तरह वर्क करती है और वही हम यूज़ करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह वर्क कराना होता है. हमें डिवाइस को इलेक्ट्रिक स्विच की तरह वर्क कराना होता है. हम डिवाइस को उसी मतलब वहीं यूज़ करते हैं, उसी प्लेस पे यूज़ करते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक स्विच की तरह हमें डिवाइस को वर्क कराना होता है कट ऑफ रीजन में. इन सेचुरेशन रीजन डिवाइस में ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है. ये जब होता है जब वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल में इंक्रीज होता है पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा. इसमें डिवाइस एक क्लोज स्विच की तरह काम करती है. एंड नाउ कमिंग टू द लीनियर ओमिक रीजन. करंट ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल में इंक्रीज होता है जब इंक्रीमेंट होता है वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स पाथ में इंक्रीज होता है. Here is one disadvantage of device. So now coming to the advantages. It generate enhanced efficiency even when functioning at minimum voltage. No presence of gate current. It create more input impedance which increase switching speed. Device function at minimum power level, thus यूजेस मिनिमम करंट. डिवाइस बहुत मिनिमम पावर पे यूज़ होती है और उसी के कारण ये बहुत कम करंट को यूज़ करती है. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज. हियर इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ डिवाइस व्हेन फंक्शन एट ओवरलोड वोल्टेज लेवल विच इज़ beyond the suitable voltage. It create instability of the device. Now coming to the application and uses of device. It is a semiconductor device, as you know, used for switching and amplifying electronic signal. Basic use of MOSFET is it is used for switching and amplifying purpose. 3-terminal device used in analog and digital circuit. Amplifier made of MOSFET are extremely employed in extensive frequency application. And regulation of DC motors are provided by this device, and it is an enhanced switching speed. It has enhanced switching speed used in different amplifiers. I hope you guys understand the concept of MOSFET.